جس سے انسان کا فائدہ ہو وہ علوم سیکھنا چاہیے۔ لڑکوں کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کی عورتوں یا لڑکیوں کا بھی تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ قومیت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اس زمانے میں بھی وقت کا مسئلہ تھا، وقت کو بحال کرنے کے مسائل کو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا، لوگوں کو خطوط لکھے، سفر کیا۔ ہمارے طالب علم، ہمارے نوجوان کر سکتے ہیں جب وہ اسٹڈی کریں، انہیں اپنے مذہب کے اور ریلیجن کے بارے میں اچھی معلومات بھی ہو، اور جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس ماڈرن ایجوکیشن کی ہر چیز ان کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے کتنی ہی مصیبت کھڑی ہو جائے تو آج کے موجودہ دور میں ہمارے جو طالب علم ہیں ان طالب علموں کو بہت ہی کنسنٹریٹ ہو کر اپنے مقصد کو واضح کر کے اور لکش بنا کر اس کے حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جنون کی حد تک محنت کرنی چاہیے۔ اکیڈمی ایسی ہو جہاں وہ رہائشی ہو، علماء یہاں پر رہیں، پڑھے لکھے لوگ یہاں پر موجود ہوں، ان کا اپنا الگ سے پریس ہو، اپنی لائبریری ہو۔ ابھی یہ قائم نہیں ہوئی تھی، سارا خاکہ بن گیا تھا کہ 18 نومبر 1914 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو ہماری آڈینس جڑی ہوئی ہم سے وہ جانتی ہے کہ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ یا انٹرویو کہی اس کی سیریز کا آغاز کیا جس کا ٹائٹل تھا ریئل ٹاک، جس پہ ہم لوگ ریئل ایشوز پہ بات کرتے ہیں، خاص طور پہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں اس پہ بات کی جاتی ہے۔ اسی سیریز میں آج ہمارے اگلے مہمان ہیں، ہم لوگ خاص ان سے ملنے کے لیے اسی لیے اعظم گڑھ آئے ہوئے تھے، جو کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، پروفیسر علاؤالدین خان صاحب۔ یہ شبلی نیشنل پی جی کالج میں HOD ہیں ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے، اس کے علاوہ انڈین ہسٹری کانگریس کے یہ ممبر بھی ہیں سر، اور ساتھ ہی ساتھ شبلی اکیڈمی جو کہ ایک بہت مشہور ادارہ ہے اس کے بھی ممبر رہے ہیں۔ میڈیول انڈین ہسٹری کی بات کی جائے تو میری نظر میں، اور خاص طور پہ اگر UP کی بات کی جائے، پورے انڈیا میں بھی بات کی جائے تو سب سے جانے مانے ناموں میں ایک نام ان کا بھی آتا ہے، اور ان کی تھیسس اس پہ لکھی بھی گئی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی، اور اس کتاب پہ پاکستان میں ایک اسکالر نے ایم فل کا ایوارڈ اچیو کیا، اور اس کا شرے بھی کہیں نہ کہیں انہیں جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا بہترین اس پہ کام کیا کہ اس پہ باقی اسکالرس کام کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام عہد اورنگزیب میں علماء کی خدمات تھا۔ عہد اورنگزیب میں علماء کی خدمات، اس کا پہلا ایڈیشن ہم نے شائع کرایا تھا دلی سے البلاغ پبلیکیشن سے، اور اس کی زیادہ تر کاپیاں ہم نے ڈونیٹ کر دی تھی شبلی اکیڈمی کو۔ جب وہ کاپیاں سب فروخت ہو گئیں تو شبلی اکیڈمی نے ڈیمانڈ کی تو ہم نے سارا جو ہے مالکانہ حق شبلی اکیڈمی کو دے دیا، اور اسی لیے دوسرا ایڈیشن جو شائع ہوا وہ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی سے شائع ہوا ہے۔ اب اس کا پورا حق شبلی اکیڈمی کو ہے، وہ کتابیں فروخت کرے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انڈین ہسٹری میں ان کا کام کتنا باریکی سے اور کتنا بہتر طریقے سے کیا گیا ہے۔ تو ہسٹری سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں سمجھیں گے، لیکن خاص طور پہ چونکہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں یہ، تو شبلی سے ریلیٹڈ بات چیت بھی ہم لوگ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اور شبلی کی جو ٹیچنگز رہی ہیں یا جو ورکس رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آج کے کنٹیکسٹ میں ہم لوگ کیا سوچ سکتے ہیں، کیا بات کر سکتے ہیں، اس پر بھی بات کرنے کی کوشش ہم لوگ کریں گے۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت بہت شکریہ، اور آپ کا شیڈول کافی بزی رہتا ہے، پھر بھی آپ نے وقت نکالا، اس کے لیے ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں۔ تو چونکہ ہم لوگ اعظم گڑھ میں بیٹھے ہیں، خاص طور پہ شبلی اکیڈمی میں بیٹھے ہیں، تو شروعات شبلی سے ریلیٹڈ ایک سوال پہ ہم کرنا چاہیں گے کہ آپ کے حساب سے شبلی نعمانی کی زندگی کا سب سے اہم پہلو کیا تھا؟ ہم لوگ اس لیے باریکی سے ان کی زندگی کے بارے میں بات نہیں کریں کیونکہ باتیں بہت ہو رہی ہیں، ان کی زندگی، ان کی پیدائش اور یہ ساری چیزیں، تو اس لیے تھوڑا ہٹ کے ہم لوگ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے اہم پہلو شبلی کی زندگی میں آپ کے حساب سے کیا رہا؟ شبلی کی پوری زندگی اگر 1857 سے 1914 تک کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان میں جو کوشش کی اس کوشش میں نمایاں کام ان کا تھا تعلیم کا فروغ، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہندوستان میں اعظم گڑھ کے علاوہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا حیدرآباد دکن
या इसी तरह से लखनऊ, नदवतुल उलमा, जहाँ भी रहे तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करते रहे। और आज़मगढ़ की अगर बात की जाए तो आज़मगढ़ में तालीम व तहकीक, रिसर्च और तालीम को फ़रोग़ देने के लिए उनकी 3 बड़ी यादगार यहाँ पर मौजूद हैं। उनमें सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि 1883 में उन्होंने नेशनल स्कूल के नाम से एक स्कूल कायम किया, जो असरी तालीम के लिए उन्होंने इदारा कायम किया था। और इसके लिए वो मुतासिर हुए थे अलीगढ़ सर सैयद की तहरीक से, इसलिए कि वो अलीगढ़ सर सैयद के रुफ़्क़ा में भी थे, उस तहरीक के चलाने वाले भी थे। और जब वो पहली बार 1883 में अलीगढ़ गए तो वहाँ बहुत मुतासिर हुए, और 6 महीने के बाद जब वापस आए तो उन्होंने 1883 में नेशनल स्कूल कायम कर दिया। अब सोचिए, ये वो ज़माना है 1883 जब पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का गलबा था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था के साथ नेशनल लफ्ज़ जुड़ा हुआ नहीं रहता था। ये इसलिए मैं कहूँगा कि शिबली ने नेशनल लफ्ज़ जोड़कर ये जुरात दिखाई कि हम हिंदुस्तान में किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, और कौमियत हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो इस तरह से सबसे पहली यादगार नेशनल स्कूल, जो आज तरक्की करते करते शिबली नेशनल कॉलेज के नाम से मशहूर है, जो न सिर्फ आज़मगढ़ बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, और तालीम के सिलसिले में उसका बहुत बड़ा किरदार है। इसलिए कि आज़मगढ़ और आज़मगढ़ के एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में अगर कुछ लोग पढ़े लिखे नज़र आते हैं तो वो शिबली कॉलेज और अल्लामा शिबली नोमानी की कोशिशों का असर है। इस तरह से हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, जो बाकायदा तालीम याफ्ता हैं, उस तालीम के हुसूल में या उनकी तालीम के हासिल करने में कहीं ना कहीं से अल्लामा शिबली का वो ख्वाब है कि लड़कों के साथ साथ हमारे घर की औरतों या लड़कियों का भी तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। तो उन्होंने तालीम पर और तहकीक या रिसर्च पर बहुत जोर दिया। दूसरी यादगार जहां हम बैठे हैं, दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी, वो बहुत दिनों से चाहते थे कि कोई ऐसी एकेडमी हो जहां हम लोग इकट्ठा हों, उलमा हों और मॉडर्न एजुकेशन हासिल किए हुए लोग हों, ताकि वहाँ पर हम ऐसी किताबें लिख सकें जिन किताबों में हमारे जो हीरोज़ ऑफ इस्लाम हैं उन पर जो मगरबी मौर्रखीन ने या मुसन्निफीन ने या मुस्तशरिकीन ने या वेस्टर्न राइटर ने जो कीचड़ उछाले हैं, चाहे वो विलियम म्योर हों या इस तरह से जुर्जी ज़ैदान हों या दूसरे मुसन्निफीन, उन्होंने होली प्रॉफिट के बारे में, इस्लाम के बारे में, या इसी तरह से अस्कंदरिया के कुतुब खाना के बारे में कहा गया कि ये मुसलमानों ने जलाया था। तो इन सारी चीज़ों के जवाब ये दे रहे थे अपनी ज़िंदगी में, और ये चाहते थे कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसी एकेडमी खोल दी जाए ताकि बराबर जो मुसलमानों पर, मुस्लिम लोगों पर, इस्लाम पर जो ताने कसे जा रहे हैं या जो एक तरह से हमले हो रहे हैं, उस हमले का जवाब एकेडमी से दिया जा सके। और एकेडमी ऐसी हो जहां वो रिहायशी हो, उलमा यहाँ पर रहें, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मौजूद हों, इनका अपना अलग से प्रेस हो, अपनी लाइब्रेरी हो। ये फिक्र उनको अपनी ज़िंदगी में सता रही थी। इसीलिए उन्होंने पहले तो सोचा कि लाइब्रेरी या एकेडमी कहाँ कायम की जाए। कुछ लोगों ने चाहा कि नदवा में कायम कर दी जाए। इनके एक दोस्त थे हबीबुर्रहमान खान शेरवानी, वो चाहते थे कि हबीबगंज लाइब्रेरी जाए, लेकिन अल्लामा शिबली ने ये कहा कि जब इन जगहों पे जाएगी तो मेरे पास बंगला है, मेरे पास बाग है, मेरे पास स्कूल है, और ये बंगला स्कूल हम डोनेट कर देंगे। स्कूल से यानी कॉलेज से तालीम याफ्ता लोग निकलेंगे जो हमारे कामों में मुआविन होंगे। लेकिन अभी ये कायम नहीं हुई थी, सारा खाका बन गया था कि 18 नवंबर 1914 को इनका इंतकाल हो गया।
और इनके इंतकाल के 3 दिन के बाद इनके शागिर्दों ने, जिनमें अल्लामा हमीदुद्दीन फराही, अब्दुस्सलाम नदवी, सैयद सुलेमान नदवी, मसूद आलम नदवी और दीगर हजरात ने मिलकर 21 नवंबर 1914 को शिबली एकेडमी की बुनियाद रख दी। ये शिबली एकेडमी वो है जहाँ से अब तक लगभग 300 बहुत ही मेयारी, बुलंद पाया तारीख़ इस्लाम, तारीख़ हिंद और शेरुल अजम, सीरतुन नबी जैसी किताबें यहाँ से शाये हो चुकी हैं और इन किताबों का दुनिया की मुतअद्दिद ज़बानों में तर्जुमा भी हो चुका है और लोग सीरतुन नबी का जवाब आज तक नहीं दे पाए। तो सबसे बड़ा कारनामा अल्लामा शिबली का तालीम का फ़रोग़, तहकीक का रवाज और तहकीक कैसी, पूरे रेफरेंस के साथ, पूरे हवाले के साथ। उनकी किताब अल फारूक एक तरह से जो नया तहकीक का तरीका है उस पर पूरी उतरती है। तो अल्लामा शिबली ने कदीम तारीख़ नवीसी और जदीद तारीख़ नवीसी के बीच में एतदाल की राह निकाली और उन्होंने कदीम और जदीद का ऐसा इम्तिजाज पेश कर दिया जो बाद में राइज हो चला और आज अल्लामा शिबली के इन्हीं खतूत पर लोग अमल कर रहे हैं। तीसरी यादगार मदरसतुल इस्लाह सराय मीर है, जो 1908 में कायम किया था उसी दयार के एक बुज़ुर्ग मौलाना शफ़ी ने। मौलाना शफ़ी साहब का गांव सीधा सुल्तानपुर है, मैं भी उसी गांव से हूं। तो 1908 में वो इदारा खुला और अल्लामा हमीदुद्दीन फराही और अल्लामा शिबली, ये लोग कोई हैदराबाद, कोई अलीगढ़, कोई लखनऊ में मौजूद है। अल्लामा शिबली लिखते हैं अल्लामा हमीदुद्दीन फराही को, अब ये वाज़े हो कि अल्लामा हमीदुद्दीन फराही कौन थे। वो शिबली के मामूदात भाई थे। हमीदुद्दीन फराही उस वक्त जो आज जामिया उस्मानिया है, उस वक्त वो दारुल उलूम के नाम से था। जामिया उस्मानिया का पूरा खाका उन्होंने तैयार किया, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पूरी तगोदो उन्होंने की। वो उस कॉलेज के उस वक्त प्रिंसिपल थे, लेकिन नवाब ने उनको रोकना चाहा। इनके अंदर वो खुददारी थी कि वो चाहते थे कि मैं जो है किसी के सामने झुकूं ना, और वो किसी के सामने झुकते नहीं थे। बाद में वो उन्होंने तरजीह दी कि अल्लामा शिबली ने लिखा कि तुम कुछ दिन के लिए आजमगढ़ आ जाओ, सरायमीर के मदरसे यानी मदरसतुल इस्लाह का नज़्म व नस्क दुरुस्त कर दिया जाए, वहाँ का सिलेबस और निसाब बना दिया जाए। तो 1910 में अल्लामा शिबली ने और उनके मामूजात भाई हमीदुद्दीन फराही ने, वो हमीदुद्दीन फराही जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इस एकेडमी के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे और कॉलेज की जो सोसाइटी शिबली कॉलेज की, उसके पहले सेक्रेटरी थे। तो हमीदुद्दीन फराही अल्लामा शिबली ने मिलकर मदरसतुल इस्लाह का निसाब बनाया। 1910 में जब पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान घरों के लोग अपने लड़कों को सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाना माजूब समझते थे, उस वक्त अल्लामा शिबली हमीदुद्दीन फराही ने मदरसतुल इस्लाम में अंग्रेजी निसाब शामिल कर दिया और कहा कि ये ज़रूर पढ़ाया जाएगा। जबकि वहाँ की इंतज़ामिया ने और बाहर के लोगों ने थोड़ा बहुत इसकी मुखालफत की, लेकिन ये लोग अपने मौक़िफ़ पर जमे रहे। यही वजह है कि मदरसतुल इस्लाह भी हिंदुस्तान का एक कदीम और बहुत ही मेयारी मदरसा है, जहाँ के फ़ारिगीन दूसरी यूनिवर्सिटियों में जाकर तालीम हासिल करते हैं। तो ये भी आज़मगढ़ में अल्लामा शिबली की यादगार है। तो इस तरह से अल्लामा शिबली का जो मेन फोकस था वो तालीम पर था। तालीम के साथ साथ वो तरबियत चाहते थे। यही वजह है कि जब इन लोगों ने शिबली स्कूल के लिए बिल्डिंग बनाना शुरू की तो आपस में मशवरा किया कि क्या शिबली स्कूल बनाया जाए, इसलिए कि स्कूल तो बहुत सारे हैं। उस वक्त वैसली स्कूल यहाँ मौजूद था, स्कूल बहुत हैं, लेकिन तरबियत करने के लिए हॉस्टल नहीं है। तो लोगों ने मशवरा किया और उस वक्त उनके जहन में आया कि एक हॉस्टल कायम करना चाहिए, बोर्डिंग हाउस, ताकि हम वहाँ पर बच्चों को तालीम के साथ साथ अखलाकी तरबियत कर सकें और इंसान बना सकें। अल्लामा शिबली किसी तरह के मज़ामीन के मुखालिफ नहीं थे, बल्कि उनका तो ये नज़रिया था कि जिससे इंसान का फ़ायदा हो वो उलूम सीखना चाहिए। अगर वो आज ज़िंदा होते तो जिस तरह के उलूम की ज़रूरत है उसकी वो वकालत करते और उसके लिए मंसूबे और प्रोजेक्ट बनाते, ताकि इस ज़माने में
जब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और इसी तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रही है, एआई का ज़माना है, तो मैं समझता हूँ कि वो इतने रोशन ख्याल थे और इतनी दूर तक सोचते थे कि वो इन सारे मज़ामीन को अपने स्कूलों, अपने कॉलेजों में लाते और तरह तरह के इंस्टीट्यूट खोलते ताकि दुनिया की तरक्की के साथ साथ मुसलमान भी तरक्की कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उनका तालीम और तरबियत पर ज़्यादा फोकस था, इसीलिए उन्होंने हॉस्टल बनाने की कोशिश की और ये कहा कि न सिर्फ आदमगढ़ के लोग बल्कि दयार के और आदमगढ़ के इर्द गिर्द के जो अजला हैं वहाँ के बच्चे आएंगे, उनको हम एक बेहतरीन तरबियत देंगे ताकि वो सोसाइटी में, समाज में, हिंदुस्तान की तरक्की में, हिंदुस्तान की नशोनुमा में अपना किरदार अदा कर सकें। तो फोकस तो उनका तालीम और तरबियत था, तहकीक था, और जो मुसलमानों पर कीचड़ उछाले जा रहे थे उस पर फोकस था। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान में वो रह कर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े अलमबरदार थे। वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में किसी तरह की कोई दरार न रहे, और यही वजह है कि उन्होंने ये जो दर्स दिया था, ये दर्स अपने शागिर्द अबुल कलाम आज़ाद को भी दिया था। इसलिए अबुल कलाम आज़ाद का जो सियासी शऊर है, उस सियासी शऊर के बारे में तमाम मुसन्निफीन कहते हैं कि अल्लामा शिबली नोमानी की शागिर्दी की वजह से था, इसलिए कि वो भी मुत्तहदा कौमियत के हामी थे अबुल कलाम आज़ाद, और ये मुत्तहदा कौमियत की जो हिमायत कर रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद, उसकी तरबियत अल्लामा शिबली ने की थी। यही वजह है कि अल्लामा शिबली नोमानी ने मुस्लिम लीग के बारे में कहा कि ये पार्टी ठीक नहीं है और कांग्रेस की हिमायत की। तो हम ये कह सकते हैं कि वो मुत्तहदा कौमियत के अलमबरदार थे, तालीम और तरबियत के अलमबरदार थे। उनकी सोच या उनकी नज़र आने वाले 100 साल पर होती थी कि 100 साल के बाद क्या होगा। यानी जितनी उन्होंने अपने ज़माने में पेशीन गोइयाँ की या जो सोचा, वो सारी चीज़ें आज हमारे सामने हैं। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि आजमगढ़ में ख़ास तौर से ये 3 यादगारें आज भी मौजूद हैं, जिंदा हैं। मौजूद होने और जिंदा होने की वजह क्या है कि वो अल्लामा शिबली का खुलूस था, और ये खुलूस ही है जो आज तक बहुत सारे नशे व फरार आए, लेकिन ये तीनों इदारे अपनी जगह पर कायम हैं और बहुस्न खूबी अपने फ़राइज़ को निभा रहे हैं, तालीम को फ़रोग दे रहे हैं, तहकीक को रवाज दे रहे हैं, और बेहतरीन तहकीक और बेहतरीन किताबें अकेडमी से शाये हो रही हैं। इतने सारे स्टूडेंट से आप इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी एक खास चीज़ जो शिबली की पर्सनैलिटी से बच्चों को लेनी चाहिए अपने अंदर, उसकी कमी नज़र आती हो? देखिए, शिबली की पर्सनालिटी जो हयात शिबली में है, बिल्कुल अगर ख़राब हालात आ जाएं, तालीम के हुसूल के मैदान में अगर परेशानियां आ जाएं, तो उन परेशानियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए और जैसे भी हो सके चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए तालीम जारी रखनी चाहिए। इसलिए कि अल्लामा शिबली नोमानी ने जिन हालात में तालीम हासिल की, वो हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उस वक्त बहुत सारे वसाइल मौजूद नहीं थे। उन वसाइल के मौजूद न होने के बावजूद भी जब उनको इस्लाम और इस्लाम के हीरोज़ के ख़िलाफ़ मुस्तशरिकीन ने लिखना शुरू किया, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने यूरोप, तुर्की और दूसरी जगहों का सफ़र किया। ये सफ़र मामूली सफ़र नहीं था। वहाँ के लोगों से मिले, लाइब्रेरीज देखी, और वो सोर्सेज उन्होंने इस्तेमाल किए जिन सोर्सेज से वो मुस्तशरिकीन का जवाब दे सकते थे, और उन्होंने दिया। और इस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि हमारे सामने कितनी ही मुसीबत खड़ी हो जाए, तो आज के मौजूदा दौर में हमारे जो तालिब इल्म हैं, उन तालिब इल्मों को बहुत ही कंसंट्रेट होकर अपने मकसद को वाज़े करके और लक्ष्य बनाकर उसके हासिल करने के लिए हमेशा जुनून की हद तक मेहनत करनी चाहिए। और यही वजह है कि अल्लामा शिबली जैसे लोग पैदा हुए, इनके अंदर जुनून था, इनके अंदर कौम के लिए कुछ करने का एक हौसला था। आप देखेंगे, अगर हम अल्लामा शिबली को पढ़ें, तो अल्लामा शिबली ने
अंग्रेज़ों के ज़माने पे में जो भी जुल्म होता था उस जुल्म के खिलाफ वहाँ पहुँच जाते थे। जैसे आजकल एक मसला छिड़ा हुआ वक्फ का, उस ज़माने में भी वक्फ का मसला था। वक्फ को बहाल करने के मसाइल को उन्होंने लोगों के सामने रखा, लोगों को खतूत लिखे, सफ़र किया, उलमा और रऊसा से मिले, फुक़हा से मिले, और फिर एक करारदाद तैयार की। उस करारदाद को इन्होंने मोहम्मद अली जिन्नाह को पेश किया और मोहम्मद अली जिन्नाह के तवस्सुस से असेंबली में वो करारदाद पढ़ी गई, और इस तरह से अल्लामा शिबली की कोशिशों से उस ज़माने में जो वक्फ को ख़त्म किया गया था वो वापस हुआ। तो आज के दौर में हमें उन्होंने जो कोशिश की थी वक्फ की बहाली के लिए, उनकी तहरीरों से हमें एक हौसला मिलता है, उससे हम एक राह निकाल सकते हैं, और एक जो है उससे हम एक तरह से वक्फ की लड़ाई के लिए या वक्फ को बहाल करने के लिए हम उस मिसाल को पेश कर सकते हैं। इसी तरह उस ज़माने में जुमा की तातील, यानी जुमा पढ़ने के लिए पहले लोगों को छुट्टी दी जाती थी कि हाँ जुमा पढ़ने चले जाइए, लेकिन अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। जब अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया तो इसके लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। उस ज़माने में एक रवाज शुरू हो गया था सोसाइटी में, और ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़, कि जगह जगह मुसलमानों को मुर्तद करने की तहरीक चल पड़ी थी। तो वहाँ जाते थे, वहाँ के लोगों को समझाते थे और बताते थे कि हाँ भाई मदरसा खोल दो, मदरसे में मौलवी की तकर्रुरी कर दो, ताकि वो यहाँ के लोगों को इस्लाम के बारे में बताए। तो इस्लाम पर अगर कोई कीचड़ आ रहा था, कोई हमला हो रहा था, तो उसका जवाब देने के लिए खड़े हो जाते थे और लोगों का साथ लेते थे, उसका मुकाबला कर सकते। तो आज जो हालात हैं वो उससे बहुत बेहतर नहीं हैं, हालात वही हैं, अंग्रेज नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमें अपने ही लोगों के बीच में रहकर हमें इन चैलेंजेस का सामना करना है, और इन चैलेंजेस का सामना उसी वक्त हमारे तालिब इल्म, हमारे नौजवान कर सकते हैं जब वो स्टडी करें, और वो स्टडी एक सही डायरेक्शन में हो, उन्हें अपने मज़हब के और रिलीजन के बारे में अच्छी मालूमात भी हो, और जो मॉडर्न एजुकेशन है उस मॉडर्न एजुकेशन की हर चीज़ उनको मालूम होनी चाहिए। यानी जिस फील्ड में वो जाएं उस फील्ड में अपने को बिल्कुल एमिनेंट साबित करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि अगर वो किसी चीज़ का जवाब दे रहे हैं, किसी चीज़ का किसी राइटिंग का जवाब दे रहे हैं, तो उस राइटिंग के लिए बिल्कुल जिसका जवाब लिखना शुरू कर रहे हैं उससे ज़्यादा उनकी स्टडी होनी चाहिए, तभी वो सही ढंग से जवाब दे पाएंगे। एक डॉक्टर है, उसके अंदर एथिक्स भी होनी चाहिए, जो प्रोफेशनल एथिक्स है, उसी के साथ साथ उसे अपने पेशे का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो अल्लामा शिबली जिस चीज़ को करते थे बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से करते थे। तो आज के तालिब इल्म को हर चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी, और अपने को शिबली जैसा बनाने के लिए उसी स्टैंडर्ड पर काम करना होगा, तब दुनिया एक्सेप्ट करेगी। और जिस तरह से अल्लामा शिबली 1914 में इंतकाल के बाद से आज 2025 में हम बैठे हैं, तकरीबन 114-15 साल हो गए, और इस 114-15 साल में आज भी दुनिया उनको याद कर रही है। तो आज का तालिब इल्म जब मेहनत करेगा, कुछ करेगा, तो उसे भी दुनिया याद करेगी, और जो नस्ल आएगी वो नस्ल भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेगी। एक आखिरी सवाल ये है कि आज के कंटेक्स्ट में जो आज के यंगस्टर हैं, स्टूडेंट खास तौर पे हैं, कई सारे डिस्ट्रैक्शन हैं या कई भटके हुए रहते हैं, कई को गाइडेंस नहीं मिलती। अगर एक आखिरी मैसेज आज के यंगस्टर्स को खास तौर पे आजमगढ़ और मऊ के जो हैं अगर आप देना चाहें तो क्या देंगे? भाई आजमगढ़ और मऊ, ये मऊ तो देखिए आजमगढ़ का हिस्सा था, 1988 में ये दूसरा ज़िला बन गया, लेकिन हम आज भी मऊ को आजमगढ़ का हिस्सा ही मानते हैं। और दोनों ऐसे इलाके हैं जहां से बड़ी बड़ी शख्सियत, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज उठी, और उन्होंने अपना असर छोड़ा हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान के बाहर भी। आजमगढ़ में देखिए हमीदुद्दीन फराही हैं, शिबली हैं, सब पे रिसर्च बाहर की दुनिया में हो रही है। इसी तरह मऊ, मुबारकपुर के जो लोग निकले उन पर रिसर्च हो रही है।
तो मैं ये चाहूँगा कि इन पर्सनालिटीज को आप पढ़ें, यानी जो हमारे यंगस्टर हैं, जो नई नस्ल है, वो पर्सनालिटीज जिसकी वजह से आजमगढ़ और मऊ जाना जाता है, उन पर्सनालिटीज के कामों को पढ़ें, उनकी एक्टिविटीज को देखें, उन्होंने किस तरह से हालात के नामुवाफिक होने के बावजूद भी अपने को स्टैंड किया। तो उसके लिए उनको पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए उनके जैसा बनने के लिए मेहनत करनी होगी। अब उसमें ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास जो है रिसोर्सेज नहीं है। वो रिसोर्सेज ना होते हुए भी वो लोग जो है एक अपनी पर्सनालिटीज को निखारा और लोगों को फायदा पहुंचाया। तो हम मेहनत करें, खुद भी अपने को स्टैंड करें, और जब अपने को स्टैंड करेंगे तो दूसरों का उससे फायदा होगा। तो आप मेहनत करें, जो एक तरह से खराब एक्टिविटीज हैं उनसे बिल्कुल अलग हो जाएं, अपने से बड़ों की इज्जत करते हुए उनसे सीखने की कोशिश करें। जो लाइब्रेरीज हैं, उन लाइब्रेरीज में जो किताबें हैं उनको पढ़ने के लिए मौका निकालें, और एक अच्छे बेहतरीन स्टूडेंट का सबूत देते हुए आपके अंदर इंसानियत या ह्यूमनिज्म भी आनी चाहिए। आप अगर इंसानियत के लिए काम करेंगे तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए होगा। अब जो लड़के किसी वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है, स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है कि उनका पता लगाएं किन वजह से, कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से स्कूल नहीं जा रहे हैं, और अगर वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। उस मदद के लिए हम उन लोगों तक पहुँचें जो मदद कर सकते हैं, और एक स्कूल ना जाने वाले लड़के को स्कूल पहुंचा सकते हैं और उसके करियर को बना सकते हैं। तो इसमें हम सब लोगों की ज़रूरत है, और हम सब मिलकर अगर काम करें तो हमारा जो नई नस्ल है वो नई नस्ल इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ गामजन होगी और कामयाब रहेगी। ये मैसेज है कि आप मेहनत करें, और मेहनत लगातार हो, मुसलसल हो, ईमानदारी हो, पंक्चुअलिटी हो, आपके अंदर इंसानी खिदमत का जज्बा हो, आपका दिल जो है वो लोगों के लिए दर्दमंद हो, और उसी के साथ साथ आप अपने करियर को भी अच्छा बनाएं। यही हमारा एक पैगाम है आप सब लोगों के लिए।